Hello everyone. So in this video, we're going to discuss all the questions from CAT 2018 quant slot 1. So this is the best way in which we can practice a different variety of questions. I always recommend my student whenever you prepare for CAT, always make sure you solve at least 6 to 7 years past papers so that you get a good idea about the type of question they ask in the examination. So without wasting time, let's start with the first question. The question is, a trader sell 10 liter of a mixture of paint A and B, where the amount of B in the mixture does not exceed that of A. All right, that means A is larger. A is in larger quantity. The cost of paint A per liter is 8 rupees more than paint B. So we have two kind of paint. The cost of A is 8 rupees more than B. If the trader sell the entire mixture for rupees 264 and makes a profit of 10%, the highest possible cost of paint B in rupees liter is. What could be the highest possible price? So this question is based on mixtures. So let's say there are two type of paint A and B. So I will be using rule of alligation. The cost of paint A is 8 rupees more than B. So let's say the cost of B is X. So I'm very sure now the cost of A will be X plus 8, right? And it says the shopkeeper, the trader sell 10 liter of mixture at rupees 264 and makes a profit of 10%, right? That means selling price is 264, profit is 10%. So I can say selling price divided by 1.1 will be the cost price. If you have not attended the profit loss lecture, I will recommend please attend first those sessions. So we can say 264 divided by 1.1. When you divide, you got what? You got 24. Or we can say 240 rupees. 240 is the cost price for the entire 10 liter. That means the price of each liter is 24 rupees. So we can say you will get 24 here, right? So if you subtract and get the ratio, what do you get? Now आपको पता है कि यहाँ पे x plus 8 बड़ा वैल्यू होगा x से, therefore 24 जो होगा ये ऑलवेज दो के बीच में लाई करता है, तो 24 x से तो बड़ा होगा लेकिन x plus 8 से छोटा होगा. So I can say आपको मिलने वाला है 24 minus x, and at the right side you will get x plus 8 minus 24. So the ratio you got is 24 minus x, and you got x minus 16. Now it says the quantity is does not exceed A. That means the quantity of A used, because this is the ratio of the quantity. So quantity of A and quantity of B will be in the ratio 24 minus x is to x minus 16, and quantity of A is bigger. That's why I can put inequality sign. 24 minus x is more than x minus 16. That's the answer. So you will get 40 is more than 2x or x is less than 20. The question is, what cannot be the value? The highest possible cost of paint B, that is x, in rupees is. So what could be the value? The answer is x has to be less than 20. X has to be less than 20. So highest possible value क्या हो सकती है? 20. Right? इससे ऊपर नहीं हो सकती. और does not exceed दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तो ज्यादा है या तो बराबर है. That's why यहाँ पे 20 आंसर है, वो भी पॉसिबल है. अगर नहीं होता तो हम 20 से बड़ा वाला आंसर मार्क करते. Does not exceed का मतलब क्या होता है? ज्यादा नहीं है, कम हो सकती है, बराबर हो सकती है. Right? All right, let's move on to the next one. Our next question is, in a circle with center O and radius 1 centimeter, an arc AB makes an angle 60 degree at O. All right. So let's make a circle first. एक सर्कल है और सर्कल में एक आर्क है, आर्क AB. ये आर्क AB सेंटर पे एंगल 60 बनाता है. बहुत बढ़िया. 60 एंगल है तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है, बिकॉज कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आराम से निकल सकती है. लेट R be the region bounded by the radius OA, OB and the arc. That means the area of sector. So R is the area of sector. So I can say R is what? It will be pi R square into theta by 360 का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ. So I will get R, that is the capital R, area will be pi R square upon 6 because the angle is 60. Now
If C and D are 2 points on OA and OB respectively, such that OC is equals to OD. Okay, so we have to take 2 points C and D. So let's say this is C and this is D. C and D are 2 points on OA and OB, such that OC is equals to OD. These two are also equal. Then the area of triangle OCD. So let's join OCD. So this triangle is forming. The area of triangle OCD is half of area of R. Then the length of OC is what? It's a very easy question if your concepts are very clear. Let's say the length of OC is X. You must be knowing the area of triangle is 1 by 2 base into height. But whenever two sides are given, two adjacent sides are given, we multiply them. So 1 by 2 OC into OD and the angle of the sine between them. So sine theta. So I can straight away say area of OCD will be what? It will be 1 by 2 x into x square. So x square by 2 into sine 60 degree, which is root 3 by 2. So I got what? I got root 3 by 4 x square is the area of triangle OCD. Now it's given that the area of triangle OCD is half of R. Let's use this condition. So area of triangle root 3 by 4 x square into that's it, root 3 by 4 x square. Root 3 by 4 x square, right, is equals to half of, this area is half of area of the R, area of R, right? The area of triangle OCD is half of the area of R. So half of R का कितना area आया था? This was pi R square divided by 6. What we have to find? We have to find the length of OC. That means we have to find x. X निकालना है हमको. We just solve it. आपको मिल जाएगा R square. R square का वैल्यू आ जाएगा 1 by 2 into pi into R square by 6 into 4 upon root 3. 1 and 2 1 and 3 What we got? We got pi into R square divided by 3 root 3 is x. So x, sorry, this is x square. So x is what? X is pi R square 3 root 3 to the power 1 by 2, right? So यहाँ पे आपको R तो दिया नहीं है, R दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर. I missed it, so I just put it here. So pi R का वैल्यू 1 आ गया. So 3 root 3 उसकी पावर में क्या आ गया? 1 by 2. So pi upon 3 root 3 to the power 1 by 2. Option number D. D is my answer, right? Let's move on. So this question is based on function. Question is of theta type. You have to type the answers. So if f of x plus 2 is equal to f of x plus f of x plus 1 for all positive integer x, and f of 11 is 91, f of 15 is 617, then f of 10 is equal to. So let's start with the solution. आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा exactly है क्या. f of x and f of x plus 1 ये consecutives हैं, तो दो को ऐड करने से नेक्स्ट वाला बन जाता है. मतलब f of अगर मैं 10 पूछा गया है, 11 दिया गया है, राइट, और f of 15 भी दिया हुआ है, यानी 10 से मुझे 15 तक की बात करनी है, तो 10 कैसे बन सकता है? 10 11 को मिलके 12 बन सकता है. तो मैं कह रहा हूं f of 12 क्या होगा? वो आ जाएगा f of 10 प्लस f of 11. सिमिलरली अगर मैं f of 13 की बात करता हूं, वो क्या होगा? f of 11 प्लस f of 12. सिमिलरली अगर मैं f of 14 की बात करता हूं, वो क्या होगा? वो आएगा f of 12 प्लस f of 13. 12 13 14 बन जाता है. 15 के पिछले दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? 13 और 14. तो f of 13 प्लस f of 14 f of 15 बन जाएगा. सो इन चार इक्वेशन का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है. तो f of 11 91 दिया हुआ है. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. ध्यान से देखिएगा, f of 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? f of 10 जो हमको निकालना है, लेट्स से f of 10 जो निकालना है वो k है प्लस 91. जस्ट पुट इट बैक हियर. यहां डाल दो वैल्यू, क्या मिल जाता है आपको? मिल जाता है f of 13 विल बी इक्वल टू f of 11 प्लस k प्लस 91. f of 11 तो 91 है, तो आपको मिल जाता है k प्लस 182. अब ये f of 13 की वैल्यू आप अगली क्वेश्चन में डाल दीजिए. यहां डालेंगे तो क्या मिलेगा? f of 14. f of 14 आ जाएगा f of 12. f of 12 तो ऑलरेडी पता है k प्लस 91. सो f of 12 की जगह पे आ गया k प्लस 91. f of 13 की जगह पे आ गया k प्लस 182. सो f of 14 की फाइनली वैल्यू आपकी आ गई 2k
+273, इसको ऐड कर दिया। f ऑफ 14 यहाँ डाल दीजिए तो आपको मिल जाता है f ऑफ 15 इज इक्वल्स टू f ऑफ 13, जिसकी वैल्यू k प्लस 81 दिख रही है ऊपर। सो k प्लस 1, सॉरी 81 नहीं 182, k प्लस 182, और f ऑफ 14 की वैल्यू कितनी आ गई है 2k प्लस 273। f ऑफ 15 आपको 615 दिया हुआ है, सॉरी 617। f ऑफ 15 आपको 617 दिया हुआ है, आई पुट इट हियर, इज इक्वल टू 3k प्लस, इसको ऐड करेंगे तो एक्चुअली 91 3 बार है, यहाँ 2 बार है, 5 बार है, तो 455 आएगा। बस k का वैल्यू निकाल लीजिए, और k जो है वही तो आपका f ऑफ 10 था। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 617 एंड 455, व्हाट यू गेट, आपको मिलता है 2, 6 एंड 5 में से गया तो 1, 162। सो आपको मिल गया 3k इज एक्चुअली 162, और k का वैल्यू कितना आ गया, डिवाइड किया 3 से 5 जा 15 एंड 4 जा 12, तो k इज 54। दैट मींस f ऑफ 10 की वैल्यू 54 आई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज 60 किलोमीटर। सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। पार्था एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम A एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड B, from same time and move toward B. Partha take 4 hours more than Narayan to reach B. Moreover, Partha reaches the midpoint of A and B 2 hours before Narayana reach. The speed of Partha in kilometer per hour is. Okay, let's draw the diagram first. Question क्या बोल रहा है समझते हैं। Question में दिया the distance from A to B. So this is point A, this is B. The distance from A to B is actually 60 kilometer. Perfectly fine. Partha and Narayan start from A at the same time. So P और N दोनों सेम टाइम शुरू करते हैं टूवर्ड्स B. पार्था टेक 4 hours मोर देन नारायण टू रीच B. ठीक है, यानी पार्था का अगर टाइम की बात करता हूं तो पार्था का टाइम और नारायण का जो टाइम होगा, अगर नारायण को लगते हैं T hours तो पार्था को लगते हैं T प्लस 4 hours, है ना, यही दिया हुआ है ना। पार्था टेक 4 hours मोर देन नारायण टू रीच B. मोर ओवर पार्था रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ A. पार्था मिड पॉइंट ऑफ ए पहुंच जाता, ए बी सॉरी ए एंड बी, यानी कि 30 किलोमीटर। 2 hours बिफोर नारायण रीच बी, जितनी देर में नारायण बी पे पहुंचता है यानी कि T hours में, उससे 2 घंटे पहले, पार्था जो है यहाँ मिड पॉइंट पे थी, ऐसे बोला हुआ है। तो बोला स्पीड ऑफ पार्था इन किलोमीटर पर आवर क्या होगी। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर स्पीड की बात करते हैं तो पार्था की स्पीड क्या हो जाएगी 60 अपॉन टी प्लस 4, और नारायण की स्पीड क्या हो जाएगी 60 अपॉन टी, है ना। सिमिलरली आपको ये भी बोला हुआ है कि जितना टाइम नारायण को लगता है उससे 2 घंटे पहले पार्था मिड पॉइंट पहुंची थी, यानी कि 30 किलोमीटर चलना है, 30 अपॉन, और जितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा पार्था को नारायण के टाइम से 2 घंटे कम, T माइनस 2। तो ये कौन किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ पार्था आ गई, है ना। तो स्पीड ऑफ पार्था फॉर दिस हाफ किलोमीटर, हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना होगा 30 अपॉन T माइनस 2। व्हाट इज T? T इज द टाइम टेकन बाय नारायण टू रीच टोटल B, टोटल डिस्टेंस B। सो अगर नारायण को लगता था T टाइम तो उससे 2 घंटे पहले पार्था जो है वो हाफ वे पे थी। पर पार्था की स्पीड 2 तरीके से निकाली जाए, बराबर ही आनी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस आना चाहिए और 60 अपॉन T प्लस 4 आना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस के टाइम पे स्पीड निकाली पार्था की और हाफ डिस्टेंस के निकाली तो सेम ही आएगी। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 1 जा इंटू जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो T प्लस 4 इज 2T माइनस 4, आपको मिल जाता है T इज इक्वल टू 8 आवर्स। सो T अगर 8 आवर्स से सवाल पूछा है, द टाइम, द स्पीड ऑफ पार्था इन किलोमीटर पर आवर, तो अगर T का वैल्यू 8 है तो पार्था का टाइम कितना हो जाएगा, पार्था का टाइम हो जाएगा T प्लस 4, यानी कि टाइम फॉर पार्था विल बी 12 आवर्स। अब मुझे बताइए, क्योंकि 4 घंटे ज्यादा लगते हैं ना, तो पार्था को अगर 12 घंटे लगते हैं 60 किलोमीटर के लिए, तो उसका स्पीड कितना हुआ 60 अपॉन 12, दिस गिव यू 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। ठीक है, क्वेश्चन करने का एक तरीका और भी सोच सकते हैं आप, कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट पे, जैसे अगर नारायण का टाइम अगर T है तो यहाँ पे लगते हैं पहुंचने के लिए पार्था को T माइनस 4। लेकिन अगर आधे डिस्टेंस की बात करते हैं तो 30 किलोमीटर के लिए जो आपको डिस्टेंस, जो टाइम लग रहा है पार्था को, वो लग रहा है नारायणा से 2 घंटे कम। तो 60 किलोमीटर के लिए
जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए डबल, यानी 2t माइनस 4। तो 2t माइनस 4 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो t माइनस 4 के बराबर होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देखिए, ये टाइम फॉर नारायणा है और ये टाइम फॉर पार्था है टोटल डिस्टेंस के लिए। हाफ डिस्टेंस के लिए आपको दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर के लिए पार्था को नारायणा के टोटल टाइम तो 2 घंटे कम लगते हैं, टी माइनस 2। तो अगर पार्था को 30 किलोमीटर के लिए टी माइनस 2 लगता है तो 60 के लिए डबल लगेगा ना, 2t-4। बट पार्था का टाइम जो है टोटल को तो बराबर होना चाहिए। तो आपको यहां से भी मिल जाता है टी का वैल्यू 8। अगर टी का वैल्यू 8 तो फिर पार्था का टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी ये ज्यादा है ना, +4 है, ये प्लस होना चाहिए था तभी तो आएगा, ये +4 है। ठीक है, तो टी का वैल्यू आ गया 8। और अगर टी का वैल्यू 8 है इसका मतलब कितना हो गया, पार्था का टाइम 12 आवर्स। तो 60 किलोमीटर अगर 12 आवर्स में चलती तो स्पीड क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज a CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered, and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. If his average score for the first 10 and last 10 are 20 and 30 respectively, find total number of tests taken by him. ठीक है, देख लीजिए ध्यान से कैसे करेंगे। एक लाइन खींचते हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट रिप्रेजेंट करता है। सो इफ द फर्स्ट 10 आर नॉट कंसिडर, तो जो रिमेनिंग का एवरेज है वो, अगर टोटल एवरेज सारा ए था, इफ द फर्स्ट 10 आर नॉट कंसिडर, दैट his average score increased by 1 if the first 10 are not increased. Sorry, what I'm saying. If the first 10 are not considered, then the average increases by 1. That means यहाँ से लेके यहाँ तक का average a+1 होगा. And if the last 10 are not considered, तो first से लेके जो end तक के marks थे, आखिरी के 10 छोड़ के, the average got decreases by 1. That means it's a-1. So the question is, if his average score for the first 10 and last 10 are 20 and 30 respectively. So for the first 10 tests, the marks are 20. For the last 10 tests, the average marks are 30. The question is total number of tests taken by him. That means we have to find number of tests, n. It's a very easy question. See how. If you go by very basic concept, let the total number of tests be n. So अगर total number of tests n है, so you must know the formula that average is sum upon number, or we can say sum is what, average into number. So average into n is the sum of all the tests he scored. An should be equal to what? Now listen me carefully. For the first 10 tests, if the average is 20, there are 10 such tests, so the sum will be 200. So 200 is the marks he scored in the first 10 tests altogether. And for the next n minus 10 test, because 10 tests are not considered, so n minus 10, the average is a+1. So for these tests, the sum will be n minus 10 into a+1. Similarly, if the last 10 are not considered, so for the last 10, the average is 30, number is 10, therefore the sum will be 300. So if you calculate the sum of all, that is a into n again, this should be equal to 300 plus n minus 10, and the score is now a-1, because for the first n minus 10 test, the score is a-1. So number of tests n minus 10 into a average will give you the sum, right? Now if you subtract, you will get the value. If you subtract it, what do you get? You get 0 here, you get -100 here, plus if you take n minus 10 common, what do you get? You get a+1 minus a+1, right? So a got cancelled out. You got 2 here. So 100 will go left side, it will become +100. So 100 is equals to n minus 10 into 2. 50 is equals to n minus 10. So n will be equal to 60. है ना, पहले जो टोटल मिला के जो टेस्ट रहे होंगे वो 60 रहे होंगे, और मैंने सिंपल समीशन के रूल को फॉलो किया कि एवरेज इनटू नंबर इज द सम, राइट? लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज 2 टाइप ऑफ टीज, A and B are mixed and then sold at ₹40 per kg. ठीक है, the profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% if this ratio is 2:3. The cost price per kg of A and B are in the ratio. Okay, CP का रेशियो पूछा हुआ है,
The question is again based on rule of alligation. So when we mix two things, the combined price is given by, or the mean price is given by A1 N1, A2 N2 upon N1 plus N2. This is the logic. Okay. So two types. Let the type A and type B. They are the cost price of A and B respectively. So let's say ratio पूछा है क्या पूछा है? Okay. The cost price per kg of A and B are in the ratio. Yes, they are asking the price का ratio. तो मान लेते हैं प्राइस है x और y, तो x is to y पूछा हुआ है. बोला है अगर आपने फर्स्ट वाला 3 किलो लिया और सेकेंड वाला 2 किलो लिया, तो average price per kg is x rupees, quantity is 3, average price is y rupees, quantity is 2. So mean price क्या बनेगा? Mean price बनेगा 3x plus 2y upon 5, and this is the mean price. And if you sold it for rupees 40, है ना, मिक्सचर किया 40 में बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का. दैट मीन्स ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस आई है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 10% बढ़ाना चाहता हूँ, यानी 1.1, दिस शुड गिव मी 40, राइट. Similarly, if these two qualities of tea are mixed in some other ratio, so the ratio is 2:3. So अब क्या प्राइस बनेगा? अब बनेगा 2x plus 3y. Average price is x per kg and 2 is the quantity. So 2 into x, 3 into y is the total amount upon 5 is the mean price. But if you do this, you get a profit of 5%. That means 1.05 you have to multiply. Let me write it properly. 1.05 is the multiplying factor because 5% profit is there, and this is also equal to 40. Now, if you equate and find the ratio, आपको x और y का ratio मिल जाता है. Let's do this. So आपको मिल जाता है 1.1 into 3x plus 2y upon 5 is equals to 1.05 into 2x plus 3y divided by 5. यही था. All right. Let's 5 कट हो गया यहाँ से. So if you multiply by 100, you get 110 into 3x plus 2y is equals to 105 into 2x plus 3y. कैंसिल कर लिया 5 से तो 22, 5 से कैंसिल किया तो 21. नाउ मल्टीप्लाई expanded 66x plus 44y is equals to 42x plus 63y. What do you get here? 66 minus 42. This give me 24x is equals to 63 minus 44. This give me, I guess, 19. 64 होता तो 20 आता ना. So what is the ratio of x and y? The ratio is 19 upon 24. Let's check the option. 19 is to 24. Yes, option number B. Right? So 2 questions as of now on mixtures and alligation. Next question. A wholesaler bought walnuts and peanuts. The price of walnuts per kg being thrice that of the peanut per kg. He sold 8 kg of peanut at a profit of 10% and 16 kg of walnut at a profit of 20% to a shopkeeper. Okay, there's a wholesaler and a shopkeeper. However, the shopkeeper lost 5 kg of walnut and 3 kg of peanut in transit. He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at rupees 166 per kg, thus making an overall profit of 25%. At what price in rupees per kg did the wholesaler buy the walnuts? Okay. So let the price are x and 3x. So there are walnut, there are peanuts. Peanut ka price x, walnut ka price 3x. So wholesaler bought walnuts and peanut. The price of walnut per kg being thrice, and this he sold 8 kg of peanuts and at a profit of 10%. Peanuts he sold 8 kg. And he make 10% profit. And 16 kg of walnut he sold 16 kg at a profit of 20%. Perfectly fine. So this is the amount he will get, or you can say this is the investment for the shopkeeper, because this is for the wholesaler. This is for the wholesaler. Right? Now it is a shopkeeper. Shopkeeper lost 5 kg of walnut. So he actually bought 16 kg, 5 किलो उसका खो गया या गिर गया ट्रांजिट में, तो कितना बचा उसके पास? 11 किलो ही बचा. एंड 3 kg ऑफ पीनट्स इन ट्रांजिट, तो उसके पास 5 किलो ही बचा पीनट्स.
उसने इन सबको मिक्स कर दिया, मतलब 16 kg का मिक्सचर बना दिया और 166 पर केजी में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 166, एंड देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और 25% का प्रॉफिट भी बना लिया। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि होलसेलर ने कितने का वॉलेट प्राइस खरीदा होगा। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली जो शॉपकीपर का इन्वेस्टमेंट है पहले वो निकाल लेते हैं। तो शॉपकीपर ने कितना इन्वेस्ट किया होगा जो होलसेलर ने सेलिंग किया होगा। देखिए, तो 3x प्राइस है, ऐसे 16 kg है, और क्योंकि 20% प्रॉफिट है इसलिए करना पड़ेगा 1.2 का मल्टीप्लाई। तो शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 3x इंटू 16 इंटू 1.2 प्लस पीनट्स x 8 किलो और प्रॉफिट 10% यानी 1.1, राइट। तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस, नॉट एसपी, सॉरी एसके, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा। सो आपको मिलेगा 16 3 48, एंड 48 का 20% होता है 9.6। इफ यू ऐड 0.6 7 57.6x 57.6x plus 8 into 1.1 is 8.8, so 8.8x. So if you add 6 and 8 14 carry over 1, 8 and 16 carry over 1, 66.4, right, correct, 66.4x, that is the cost price for the shopkeeper. But now shopkeeper already gained 25%, that means 66.4x को 25% बढ़ाना है, यानी 5/4 का मल्टीप्लाई करना है। So if you do 5/4, this is the selling price, but selling price we already know, he sold 1 kg at 166 and he sold total such 16 kg, right? So 166 into 16, so can we find the value of x here? Yes, 166 into 16 into 4 divided by 5 into 66.4, right? So if you carefully observe, 66.4 is divisible by 4. Yes. If you remove it, you get 10 here. 1za and 2za, 1za and 3 32. It's double of this. 1za and 2za, 1za and 8za. So you got x equals to 32. So the price of peanut per kg is 32, but they're asking for walnut. So if x is 32, 3x will be 32 into 3. This give you 96, right? Okay, let's move on. Next is when they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A. A does. So it's a time and work question. They two finish the job in 13 days in the following manner. A works alone till half the job is done. Then A and B work together for 4 days. And finally, B works alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days B alone finished the entire job? Let's make a timeline. जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था मैंने बताया कि टाइमलाइन बनाया करो ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए आपको। चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो पहली चीज ये दिया हुआ है कि बी नीड्स 25% मोर टाइम। सो ए और बी की बात करते हैं। सो अगर ए का टाइम 100 होता तो बी का टाइम 125 होता। तो टाइम का रेशियो अगर देखा जाए, टाइम का रेशियो आ गया 4:5। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो। मतलब अगर ए को लगते हैं 4x डेज तो बी को लगते हैं 5x डेज। ये वो गिवन है, राइट। सो अब बोला हुआ है when they work alone, B need 25% more time to finish the job than A does. They too finish the job in 13 days in the following manner. A work alone till half the job is done. So A ने पहले फर्स्ट हाफ तक काम किया। अब आप मुझे बताइए, A अगर पूरा काम 4x डेज में करता है तो हाफ काम कब करेगा? 2x डेज में करेगा। तो यहां लिख दिया 2x डेज। फिर बोला हुआ है देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अब अगले 4 दिन ए और बी ने काम किया तो मैंने यहां लिख दिया 4 दिन, 4 डेज। ठीक है। फिर बोला एंड फाइनली बी वर्क अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% जॉब। और बाद में सिर्फ बी ने काम किया और बी ने आखिरी में सिर्फ 5% काम किया। ये हमको गिवन है। बोला बताइए कि अगर ए बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, यानी हमको 5x की वैल्यू ढूंढनी है। अग्री विद दिस? ओके। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे 2x वर्क तो इनिशियल
हो गया है। अच्छा, अगर ए का दिन अगर 4x है तो कितना काम करता है एक दिन में? 1/4x। बी कितना करेगा? 1/5x। तो इन 4 दिन में कितना काम करेगा? ए करेगा 4/4x, बी करेगा 4/5x, बिकॉज वन डे में 1/4x एंड 1/5x, तो 4 डेज में 4/4x 4/5x। ठीक है। और पहले 2 दिन कितना काम हो चुका है? नहीं, नॉट सॉरी, पहले 2 दिन, पहले 2x डेज में कितना काम हो चुका है? हाफ काम हो चुका है। मतलब अब जो काम बचा है वो हाफ ही है। तो ये 4 दिन का काम प्लस टोटल वर्क का 5%। अब ध्यान से देखिएगा, 5% का मतलब होता है 1/20 ऑफ द वर्क। सो बी अगर पूरा काम करने के लिए 5x डेज लगाता है, तो 1/20 काम करने के लिए अगर काम आधा होगा तो दिन भी आधे हो जाएंगे। तो 5x/20 यानी x/4 लगाता होगा, राइट? x/4 डेज, x/4 डेज लगाता होगा। दैट मीन्स यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? x/4 डेज मिल जाएगा आपको, है ना? ध्यान से देखिए, अगर बात करते हैं, चलिए वर्क को तो हटा दीजिए, वर्क किसी काम का नहीं फिलहाल हमारे लिए। समझिए पहले ध्यान से कि अगर ए 4x डेज में काम करता है तो 1 डे में करता है 1/4x, और बी अगर करता है 5x में तो करता है 1/5x। तो अगर बी पूरा काम 5x में करता है, यानी 100% वर्क 5x में करता है, तो 5% यानी 1/20 कितने में करेगा? 5x/20 यानी x/4 डेज में करेगा। और आपको पता है इन सब डे का समीशन कितना आना चाहिए? 13। क्वेश्चन सॉल्व। दैट मीन्स 2x + 4 + x/4 शुड बी 13। अ वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ए आधा काम करता है यानी कि 2x डेज तक काम करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो आपको मिल जाता है यहां से 8x + x, 9x/4 = 9, x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 तो कितना हुआ? 5x। द आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर सी, राइट? लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज an equilateral triangle T1 with side 24 centimeter. A second triangle T2 is formed by joining the midpoint of the sides of T1. Okay, so एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल। देखते हैं क्वेश्चन किस टॉपिक पे ज्योमेट्री का दिखता है। सो एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसको नाम दे दिया इन्होंने T1। ठीक है, फिर बोला है अ सेकेंड ट्रायंगल T2 इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ T1। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और आपने एक ट्रायंगल और बनाया, इसको हमने T2 नाम दिया। ठीक है, देन थर्ड ट्रायंगल T3 इज फॉर्म, तीसरा ट्रायंगल बनाया आपने बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ T2। इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करें और एक ट्रायंगल बना दिया। If this process is of forming triangle is continued, the sum of all the areas in square centimeter of infinitely many such triangles. A very easy question, थ्योरी में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के मेरे वीडियो नहीं देखे, इस टाइप क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन वैरायटी क्वेश्चन कैट की या बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए, एरिया निकालना है। मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस किए मैंने कि इफ यू जॉइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन द साइड विल बी द पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर ये ट्राइंगल एबीसी था, तो अगर आपने ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट ज्वाइन किया, तो जो पॉइंट है पी क्यू, ये पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा और पी क्यू की लेंथ बी सी की हाफ हो जाएगी। साइड विल बी हाफ, साइड विल बी हाफ। ठीक है, इसका मतलब आपको एरिया बोला कि एरिया कितना आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया आएगा, इक्विलेटरल है तो √3/4, 24 का होल स्क्वायर। फिर जब ट्राइंगल T2 बन रहा है उसका एरिया आएगा √3/4, 12 स्क्वायर, बिकॉज साइड बॉट हाफ, PQ की वैल्यू 12 आएगी। सिमिलरली अब जो बनेगा, लेट मी गिव द नेम एज XYZ। सो XYZ, अब YZ की जो लेंथ होगी, YZ जो होगा वो PQ के पैरेलल होगा, उसका भी हाफ होगा, है ना? बिकॉज इन ट्राइंगल लेट्स से PQR, इफ यू जॉइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, तो YZ विल बी हाफ ऑफ PQ, यानी कि 12 का हाफ 6 हो गया, तो उसका एरिया आएगा √3/4 × 6 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए आपको सबका सम निकालना है। इट्स इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको पता होगा कि अगर ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है, आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है कि अगर डिक्रीजिंग जीपी है तो ही ऐसा होता है। मॉड आर की अगर वैल्यू 1 से कम है। सम कैसे निकालते हैं? सम निकालते हैं a/1 - r। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है √3/4 × 24 का स्क्वायर प्लस
√3/4 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। √3/4 को इग्नोर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर रेशियो हो गया 1/4 का। ध्यान से देखिएगा, 1/2 नहीं 1/4 हो गया बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, तो रेशियो मेरा 1/4 होगा। सो मेरा आंसर क्या आएगा, ए यानी 24, सॉरी नॉट 24, 24 स्क्वायर। ए कितना हो गया मेरा 24 का स्क्वायर, सो 576 अपॉन 1 माइनस आर, रेशियो मेरा 1/4 है और सभी टर्म्स में √3/4 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सब में भी कर देंगे, एक ही बात है। तो दैट्स योर आंसर। सो आंसर आ जाएगा √3/4 इंटू 576 डिवाइड बाई 3 और ये 4 आ जाएगा ऊपर, 4 से 4 कट हो गया। 3 से ये कट होता है क्या, इफ यू एड यस होता है, 1 जा 192, तो आंसर क्या आएगा 192√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन। Next is, while multiplying three real numbers, Ashok took one of the number as 73 instead of 37. As a result, the product went up by 720. Find the minimum possible value of sum of square of two other two numbers. Okay, it's based on minimum possible value. So मुझे पता नहीं क्यों अलजेब्रा ज्योमेट्री थोड़ा एक्साइट करता है, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 नंबर थे, तो लेट्स से फर्स्ट इज x, द अदर इज y, एंड अशोक टुक वन नंबर इज 73, थर्ड नंबर 73 ले लिया, तो इनका मल्टीप्लाई निकालना था, लेना था 37, तो लेना था x इंटू वाई इंटू 37, और ऐसा हुआ ये कि अब जो प्रोडक्ट है वो बढ़ गया, तो अगर एक्चुअल प्रोडक्ट p था तो अभी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, p प्लस 720 आ रहा है। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट व्हाट यू गेट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 73xy, xy मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 37xy इज इक्वल टू 720, राइट। इफ यू टेक xy कॉमन, 73 एंड 37 का डिफरेंस कितना हो गया, डिजिट्स गॉट इंटरचेंज, 7 और 3 का गैप होता है 4, 9 4 जा 36 हो गया, 720 हो गया, है ना, बिकॉज गैप कितने का, 4 का है ना, तो दो नंबर का डिफरेंस निकालना है ए बी और बी ए, कैसे निकालते हैं, 9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। 7 और 3 का गैप 4 है, 9 4 जा 36, ठीक है, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 720 डिवाइड बाय 36 इज गिव यू 5, ये 5 आ गया, 5 ही आएगा ना, नहीं 5 नहीं आएगा, सॉरी 20 आएगा, मैं तो उसको डिवाइड करने पड़ गया, दिस विल बी 20। सो आपको इतना मालूम पड़ गया कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, x इंटू वाई का वैल्यू 20 आ रहा है, ठीक। आपसे बोला हुआ है कि अगर x इंटू वाई का वैल्यू 20 है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, मतलब आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी। सो जब भी मिनिमम मैक्सिमम होता है तो एम जी एम समझ में आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर दो नंबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर दो नंबर है, एक नंबर है एक्स स्क्वायर एक नंबर है वाई स्क्वायर, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So x square plus y square divided by 2 will always be more than xy, or we can say x square plus y square will always be more than 2xy. x into y का value 20 है, that means x square plus y square will always be more than equal to 40, यानी x square y square 40 से बड़ा या 40 के बराबर होगा, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी कितनी होगी इसकी, 40, तो 40 इज द आंसर, अ वेरी इजी वन। नई रूल पता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपना प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर निकालना है तो आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि प्रोडक्ट अगर 20 है और मैक्सिमाइज करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तभी होगा जब इनके बीच में डिफरेंस कम से कम होगा, कम से कम का गैप हो, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। बट एम जी एम पता होना चाहिए आपको, ये इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्स इंटू वाई अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, तो वी कैन टेक √20, एक नंबर √20 है एक नंबर √20 है, बस डाल दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो भी चलेगा, 40 आ जाएगा। बट एम जी एम से मैंने करके दिखाया बिकॉज रूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगेन बेस्ड ऑन अलजेब्रा, इट्स बेस्ड ऑन लॉगरिथम, क्लियरली दिख रहा है, इफ x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट 2 to the power x is equal to 3 to the power log of 2 with the base 5, then x is equals to, a very easy question, जबरदस्ती कंफ्यूजिंग दिखता है ये क्वेश्चन, बट बहुत ही आसानी से हो जाएगा।
सो ये दिया हुआ है 2 to the power log of 2 with the base 5. ठीक है, डू वन थिंग, अभी ये नीचे एक जगह पे बेस 2 है, एक जगह पे 3 है, वी कैन नॉट कंपेयर इट, दोनों तरफ लॉग ले लो, उससे क्या होगा x नीचे आ जाएगा। कौन सी बेस में ले लें, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे। मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे बेस बाद में करता हूँ डिसाइड, पहले लॉग लेके देखता हूँ। देखिए अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपको पता होगा लॉग ऑफ m टू दी पावर n जो होता है वो n log m होता है, बस ये हो जाएगा x इंटू लॉग 2। कहीं पर भी कोई हायर कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, फंडामेंटल क्लियर है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये सारे फंडामेंटल मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हुए हैं, अगर आपने वीडियोस फॉलो नहीं करें अभी तक तो देखिए, थ्योरी कवर कीजिए। तो यहाँ मिल जाएगा x log 2 और मिल जाएगा साथ में log of 2 with the base 5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा log 3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आप सवाल उठता है सर कौन सी बेस में लॉग ले। आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है अगर आप बेस 5 में ले ले तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बेस 5 में सबका लॉग ले लेते तो क्या होता, ये वाला पार्ट तो कट ही हो जाता, तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाती। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई log 3 विद द बेस 5। दैट्स माय आंसर। बट ऑप्शंस इस हिसाब से कहीं पे भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शन को थोड़ा वेरीफाई करो, देखो सिंपलीफाई करो क्या मिलता है। पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर यानी 2 बाहर आ जाएगा, ये तो 2 टाइम्स ऑफ log 3 है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखो log 3/5, ये दिख रहा है शायद बन सकता है, या इस दोनों में से कोई एक बनेगा। कैसे, 1 प्लस log m बाय log n क्या होता है, log m बाय सॉरी 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 नॉट log m बाय log n, log ऑफ m बाय n क्या होता है, log m बाय log n कुछ नहीं होता, log ऑफ m बाय n होता है। तो ये आ जाएगा log 3 विद द बेस 5 माइनस log 5 विद द बेस 5, log 5 विद द बेस 5 तो 1 होता है, ये 1 से 1 कट हो गया, आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो जबरदस्ती इतना करने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना कि 1 प्लस कैसे बनाऊं। आप 1 प्लस बनाना चाहते हो बना लो, log 5 क्या करोगे इसमें, आप इसमें आप log 5 विद द बेस 5 ऐड कर दो, और log 5 विद द बेस 5 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, प्लस वाला जो है वो 1 बन जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्ती उलझो मत। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन log। It says if log of 81 with the base 12 is equal to p, then 3 times of p minus 4 upon p plus 4 is equal to। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अरेंज करते हैं, पहले वैल्यू डाल देते हैं फिर सोचते हैं क्या सिंप्लीफाई होता है। तो 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस p, तो ये आपका आ जाएगा 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, तो आई एम राइटिंग, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये आपको ना छोटी छोटी चीजें तुरंत दिखनी चाहिए, जब आप जितना कम आप पेपर पे कॉपी करोगे ना उतना आपका काम आसान होगा, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। आप क्या करते हो, पूरा डेटा कॉपी करते हो, वो डेटा कॉपी नहीं करना है। 4 log 3 विद द बेस 12 हो गया, और नीचे कितना आ गया, नीचे भी आ गया आपका 4 प्लस 4 log 3 विद द बेस 12। ठीक है, अब दिख रहा है कि क्लियरली कि 4 कॉमन निकलेगा और कट जाएगा, तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इतना तो होशियार होंगे आप कि आपको दिख रहा है कि 4 कॉमन निकल के कट जाएगा, अपॉन 1 प्लस log 3 विद द बेस 12। अब क्या करें, अब लगाना पड़ेगा दिमाग, ध्यान से देखिए। ये जो 1 आता है ना, जब 1 माइनस आता है प्लस आता है तो आपको क्या करना होता है, जो बेस दी होती है ना उसी बेस में लिखना होता है, उससे क्या होता है ये क्लब हो जाती है, टर्म्स प्लस माइनस हट जाता है। क्या मैं लिख सकता हूँ, log 12 विद द बेस 12 माइनस log 3 विद द बेस 12, बहुत आसान, अपॉन log 12 विद द बेस 12 प्लस log 3 विद द बेस 12। अब log m बाय log n क्या होता है, सॉरी log m माइनस log n क्या होता है, इट्स log ऑफ m बाय n, log ऑफ 12 बाय 3 यानी 4 हो जाएगा, डिवाइडेड में log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा 12 3 यानी कि 36 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे अगर केयरफुली देखें कि ये आपको फाइनली मिल गया 3 टाइम्स ऑफ log 4 अपॉन log मिल रहा है 36 का, और बेस लिखा हुआ है 12। बहुत ध्यान से देखिएगा, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log, और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 विद द बेस 12, और यहाँ हो गया log 6 विद द बेस 12, और 2 2 कट हो गया। अब एक बेस चेन रूल होता है कि आपको पता है log ऑफ a विद द बेस b जो होता है log a अपॉन
log b with the base, जो मन में आ लिख दो। तो इस बेस चेन रूल के हिसाब से अगर log a बाय log b ये बेस सेम है तो आप इसको log a यानी न्यूमरेटर वाला यहाँ आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर वाला log है वो बेस बन जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ log 2 with the base 6। दैट्स माय आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स ऑफ log 2 with the base 6। ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 3 को ऊपर भेज दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 log ऑफ 2 क्यूब यानी 8 with the base 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। Next is a right circular cone of height 12 feet stand on its base. Right circular cone, which means a right angle triangle is revolved and height जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसकी बेस पे, ऐसा बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करके बनाया गया है, या हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ, ठीक है। और राइट सर्कुलर कोन इज देयर जिसका हाइट 12 फीट दिया हुआ है, स्टैंड ऑन इट्स बेस सच विच हैज डायमीटर 8 फीट, 8 फीट का डायमीटर दिया हुआ है, अच्छी बात है। और हाइट आपको दी हुई है 12 फीट, ये भी ठीक है। The tip of the cone is cut off from a plane which is parallel to the base and 9 feet from the base. सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो जाके देख लीजिए। एक प्लेन से अपने कट किया तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ फिगर बन जाता है। मैंने डिस्कस किया था V1 V2 V3 वाला क्वेश्चन था कि दो प्लेन कट करेंगे तब क्या होगा। ज्योमेट्री के वीडियो देखिएगा 3D वाले, उस पर क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने। ये सेम वैरायटी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे भी। जो कि 9 फीट है बेस से, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 9 फीट का, यानी ऊपर बच गया 3 फीट, ठीक है, क्योंकि 12 फीट था। तो बोला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन का वॉल्यूम क्या होगा, नीचे वाला वॉल्यूम निकालना है। तो नीचे जो मिल रहा है वो मिल क्या रहा है, वो फ्रस्टम ऑफ कोन मिल रहा है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन को वॉल्यूम निकालने का भी फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसकी रेडियस मिलनी चाहिए। तो नीचे वाली रेडियस तो मालूम है 4 है, ऊपर वाली नहीं पता, तो यहां लगेगी सिमिलैरिटी। ध्यान से देखिएगा कैसे सिमिलैरिटी लगाएंगे, और सिमिलैरिटी लगा के सॉल्व करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। देखिए ये डिस्टेंस 3 है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जहां से कट किया, एक ये 4 है, ये 3 है, और टोटल मिला के देखा जाए तो 12 है, ये आर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी, ये 90 है, और ओ पी क्यू ये भी 90 है। तो ट्रायंगल ओ ए बी ओ पी क्यू के सिमिलर होगा, तो जो रेशो ओ ए का आएगा ओपी के साथ वही रेशो आएगा ए बी का पी क्यू के साथ, है ना। सिमिलरिटी लगा ली। ओ ए कितना है 3, ओपी कितना है 12, ए बी कितना है आर, और कितना है पी क्यू 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप तो। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है h बाई 3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 into r2। अगर आपको नहीं पता तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, h बाई 3 a1 प्लस a2 plus root a1 a2, where a1 a2 are what, a1 a2 are the area of the two bases, top और base का एरिया। वो तो किसी भी टाइप के फ्रस्टम में लग जाता है, अगर आप पिरामिड काटते हो तो भी फ्रस्टम बन सकता है, वहां पे राइट वाला फॉर्मूला यूज होता है। कोन की केस में पाई आर स्क्वायर लगा के सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला ये लिखवाया जाता है। तो एच कितनी है फ्रस्टम की, एच कितनी 9 फीट, तो 9/3 पाई, पहला रेडियस, नीचे वाला रेडियस 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, और 4 into 1। क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका आंसर आ गया 3 पाई, 16 और 4 20 और 1 21, तो आंसर आ गया 63 पाई। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है नहीं टीटा वाले फॉर्म में, तो 63 पाई मत लिखिए, आप वैल्यू डाल दीजिए। तो 63 इंटू 22/7, 9 इंटू 22, 9 का डबल 18, 18 करोगे तो 198, 198 वॉट स्क्वायर फीट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 198 स्क्वायर फीट। सो आंसर बहुत इजीली निकल जाता है, फंडामेंटल, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर्स, इट्स अ पीएनसी क्वेश्चन। How many numbers with 2 or more digit can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। How many 2 digit or more digit number, so that in every such number each digit is used at most once and the digit appear in the ascending order। दो कैट के क्वेश्चन कंबाइन करके नया कैट क्वेश्चन बना दिया। एक बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था कैट का, वो भी बताता हूँ क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि 1 से लेके 9 तक के डिजिट हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है,
ए बी सी सच दैट कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, बी सी से बड़ा होना चाहिए। दिस वाज द कैट क्वेश्चन। ऐसी कुछ क्वेश्चन था। बोला कितने बन सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तरीका तो होता है कि आप बारी बारी सारे केस बनाओ कि अगर अगर ए की जगह पे 9 आ गया तो बी की जगह और सी की जगह पे क्या क्या आ सकता है, एंड सो ऑन। बहुत लंबा कैलकुलेशन। एक्चुअली खूब सारी जगह पे ऐसा सॉल्यूशन अवेलेबल भी है, बट आप कॉमन सेंस लगाओ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में आता हूं, पहले ये समझ लीजिए। अगर 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं और ऐसा बोला है कि 100 डिजिट 10 से बड़ी होनी चाहिए, 10 डिजिट 1 से बड़ी होनी चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? सुनना बहुत ध्यान से। अगर मैं 9 में से कोई भी 3 नंबर लू, 9C3, इतने नंबर बन सकते हैं, इतने ही बन सकते हैं, दैट्स इट। क्यों? देखिए, जितने टाइप से आप 3 नंबर का सिलेक्शन करोगे, कोई भी नंबर 3 सिलेक्ट कर लो। तो लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया 130, 139, 1 सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, 9 सिलेक्ट किया, तो इसके टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। 139, 193, 319, 391, 913, 931। बट उसमें से एक्सेप्टेबल सिर्फ एक होगा। सुनिए बहुत ध्यान से, एक्सेप्टेबल सिर्फ एक होगा, बिकॉज 9 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। मतलब कोई भी सिलेक्शन करोगे, परम्यूटेशन करोगे, तो परम्यूटेशन में तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन उन सभी 6 में से एक्सेप्टेबल एक ही होगा, यानी बाकी 5 हटा दीजिए। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे 3 के, उतने ही तो आपके नंबर पॉसिबल होंगे। आप सोचिए ध्यान से। बस 3 नंबर का सिलेक्शन करोगे, उसको आपको परम्यूट नहीं करना, क्योंकि परम्यूटेशन करोगे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे जिसमें 100 डिजिट 10 से बड़ी नहीं होगी और 10 डिजिट 1 से बड़ी नहीं होगी। ऐसा 3 नंबर का सिलेक्शन जो आपको ये ऐसा ऑर्डर दे दे, वो एक ही हो सकता है। अगर आपने 7 सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया और 9 सिलेक्ट किया, ओनली ऑर्डर इज 973। तो अगर आपने 3 सिलेक्ट किया, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट? आउट ऑफ 9 यू सिलेक्टेड 3। लेकिन अब जो 3 3 सिलेक्ट किए गए उसमें करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल, बट वो आउट ऑफ 3 फैक्टोरियल एक ही एक्सेप्टेबल है, नहीं हटाना पड़ेगा, ये जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बिकॉज सभी के लिए आंसर एक ही बनेगा। इफ यू सिलेक्ट एनी 3 नंबर, देयर इज ओनली वन ऑर्डर सच दैट 100 डिजिट 10 से बड़ी हो और 10 डिजिट 1 से बड़ी हो। आई होप आई एम मेकिंग द लॉजिक। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखिए कैसे। How many number with 2 or more digit can be formed with the digit 1 to 9, so that in every such number each digit is used as ones and digit appear in the ascending order? बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 और more digit, ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे? तो वो आएगा 9C2। 9C2। Let's say I selected 2 and 3. If I select 2 and 3, so the only order is 2 के बाद 3. If I select 1 and 7, only order is 1 के बाद 7. So that's why I need not have to multiply this by factorial. अगर नंबर 3 डिजिट का होगा और नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो 9C3 है ना, बिकॉज जितना टाइप से, जितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बस उतने नंबर बन सकते हैं। 9C4। अगर आपने 4 डिजिट सिलेक्ट किए, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर सच दैट द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। समझिए इस चीज को। तो आपको बस करना क्या था, 9C2 नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट के, 9C3 बन सकते हैं 3 डिजिट के, 9C4 बन सकते हैं 4 डिजिट के, 9C5 बनेंगे 5 डिजिट के, ऐसे 9C9 बनेंगे 9 डिजिट के। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं तो एक काम करूंगा, पीएनसी के लिंक्स और सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा कि NC0, NC1, NC2 अप टू NCN, ये 2n होता है। बस लगा लीजिए। तो 9C0 अवेलेबल नहीं है और 9C1 अवेलेबल नहीं है। होता तो ये वैल्यू 2 की पावर 9 आती, तो कोई बात नहीं। 9C2 से लेके, तो अगर आपको 9C9 तक निकालना है तो एक काम कीजिए, 2 की पावर 9 में से 9C0 यानी कि 1 और 9C1 यानी कि 9 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2 की पावर 9 होता है 512, -1 -10, तो 512 -11 कितना आ जाएगा? 11 होगा ना। 9C1 9 का, सॉरी 9 होगा ये, नॉट 10। 9C1 इज 9 ना। तो 512 में से 10 गया तो कितना आएगा? 502। दैट्स माय आंसर। तो अगेन टाइप ऑफ टीटर क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर टाइप करना है। ठीक है, पीएनसी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको रिपीट मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट नॉट द क्वेश्चन। और अच्छे कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए।
Next is based on installment. John borrowed 2,10,000 from bank at an interest of 10% per annum, compounded annually. The loan was repaid into equal installment. One, the first after 1 year and the second after the another year. The first installment was interest of 1 year plus part of the principal amount, while the second was the rest of the principal amount plus due interest thereon. Then each installment is of rupees. A very easy question, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है. टॉपिक पढ़ाने की शुरुआत ही यहां से होती है. मैंने ये इंस्टॉलमेंट का चैप्टर नहीं डाला है, बट अब मुझे लगता है मुझे डाल देना चाहिए. तो मैं इंस्टॉलमेंट का रिकॉर्डिंग करके जरूर डाल दूंगा जल्दी. देखिए ध्यान से. आपने लोन लिया 2,10,000 का, ठीक है, 10% पे. तो बताइए वो फाइनली कितना बन जाएगा. फाइनली वो 2 साल में बन जाएगा 2.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर, बिकॉज 10% लगेगा सक्सेसिवली कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 की पावर में n, है ना. और राइट, फिर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया. इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होती है, तो आपने यहाँ पे x पे किया, यहाँ पे आपने x पे किया. अच्छा, हम यहाँ पे फाइनल जब कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां तक सारा हिसाब किताब निकालते हैं. देखिए ध्यान से. जो आपने पहले साल में इंस्टॉलमेंट पे किया x, वो एक और साल के बाद क्या बन चुका होगा, वो बन चुका होगा 1.1x. और आपने उसी साल एक और इंस्टॉलमेंट पे किया x, तो प्लस आ गया x. ये 1.1 क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान से देखिए. एग्जांपल, 2018 में लोन लिया, 2019 में एक पे किया और 2020 में एक पे किया. तो 2018 में तो लोन लिया था, तो एक साल के बाद आपने x पे किया, और वो x 2019 में पे किया हुआ x आपने 2020 में जाके क्या बन चुका होगा, 1.1x बन चुका होगा, बिकॉज आप फाइनल वैल्यू पे काम कर रहे हो. ठीक है, मैं जब चैप्टर डालूंगा जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो. तो ये x जो है 2019 में पे किया हुआ, वो फाइनली 1.1x बन जाएगा 2020 तक. और 2020 में आपने खुद x पे किया, तो जितना 2020 में पे किया और जो 19 में पे किया, ये सब मिलके कितना बनना चाहिए, जो फाइनली पे करना था, यानी 2.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर. टोटल बोरो किया था 2,10,000. दिस इज द टोटल डेथ. ठीक है, तो आपको मिल जाता है 2.1x इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर. ऑल आर इन लैक्स. 2.1 कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई, 1.21 लाख. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,21,000. एक इंस्टॉलमेंट 1,21,000 की होगी. बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है. इंस्टॉलमेंट पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली कर लोगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए बोलता हूं मैं कि टॉपिक कोई छोड़ो मत, फंडामेंटल सारे क्लियर करो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज इफ u स्क्वायर प्लस u माइनस 2v माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4v इंटू u प्लस v, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस 3v. बॉस इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि ये तो कुछ अजीब से है. कुछ क्या लिखना है क्या है पता नहीं, सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यू स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ए का वैल्यू यू है, बी का वैल्यू -2b और सी का वैल्यू -1 है. तो ए स्क्वायर यानी यू स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 1 प्लस के 2ab, बट ऑलरेडी बी हमारा नेगेटिव है तो हो जाएगा माइनस के 4uv. फिर प्लस के 2ab माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस ही आने वाला है, प्लस के 4b और प्लस के 2ca यानी हो जाएगा माइनस के 2u इज इक्वल टू माइनस के 4uv माइनस के 4v स्क्वायर, -4v स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है. तो देखिए माइनस के 4uv माइनस के 4uv कट हो गया, तो आपको मिल क्या रहा है, 2u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 2u प्लस 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस. ये माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 4v स्क्वायर था. तो अल्टीमेटली आपको मिल गया 2u स्क्वायर प्लस 8v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ऐसा कुछ है. बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. लॉजिक इतना सिंपल सा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कहीं पर भी u v का टर्म्स नहीं है. u का स्क्वायर है तो u का टर्म है, v का स्क्वायर और v का टर्म है, कहीं पर भी u v नहीं है. दैट मींस परफेक्ट है. ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 2 के समेशन में.
तो अगर आप 2u² और 2u² और 2u को क्लब करें, और अगर आप 8v² और 4v को क्लब करें, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। आपको मिल गया u² माइनस u। अब कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? जो भी कोफिशिएंट होता है ना मिडिल टर्म का, यानी जो x का या u का कोफिशिएंट होता है, उसको हाफ करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हाफ किया तो कितना हो गया? 1/2, है ना। ये कोफिशिएंट कितना है? 1 है ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1। 1 का स्क्वायर 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो प्लस 1/4 करेंगे तो अपने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 1/4, ये 2 के साथ माइनस होके -2/4 यानी -1/2 बन जाएगा, बाहर लिख दिया मैंने। प्लस इसमें से एक कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा v² प्लस v/2। अब v/2 का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का हाफ 1/4 हो गया, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। 1/16 ऐड करेंगे, 1/16 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन जब ये 8 अंदर वाले -1/16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 8/16 यानी -1/2 बन जाएगा, +1 = 0। कुछ भी नहीं करा, कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐड किए। ऐसा करने से क्या हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ u - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ v + 1/4 का होल स्क्वायर -1/2 -1/2 -1, और ये 1 कट होके =0 बन गया। थोड़े दिन पहले अलजेब्रा का एक वीडियो डाला था प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसका लास्ट क्वेश्चन था कि दो स्क्वायर्स का एडिशन 0 अगर आ रहा है तो ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर 0। ये 0 तभी बन सकता है जब u का वैल्यू 1/2 हो और v का वैल्यू -1/4 हो। हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो u और v निकल गए। अब तो क्या पूछा है, u + 3v का वैल्यू क्या होगा? u + 3v तो आराम से निकल जाएगा, तो 1/2 - 3/4, एलसीएम हो गया 4, 2 - 3, सो आंसर इज -1/4, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, -1/4। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अगेन अ टी टाइप क्वेश्चन। Point P lies between A and B such that length of BP is thrice that of AP. Okay, let's read the question and make diagram simultaneously. कोई क्वेश्चन दिख रहा है टाइम एंड डिस्टेंस टाइप का, बिकॉज लेंथ वगैरह की बातें कर रहा है शायद। पॉइंट P lies between A and B। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। तो A और B के बीच में एक पॉइंट है P। ठीक है, such that BP is thrice of AP. So let's say AP is X, so BP will be 3x. कार 1 स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार शुरू होती है ए से एंड मूव टुवर्ड बी, एंड साइमल्टेनियसली कार 2 स्टार्ट फ्रॉम बी एंड मूव टुवर्ड ए। ठीक है, एक कार शुरू हो रही है यहां से और एक कार शुरू हो रही है यहां से। फिर बोला है कार 2 रीचेस पी 1 आवर बिफोर कार 1। कार बी को 1 घंटे पहले पहुंच जाती है कंपेयर टू कार 1। If the speed of car 2 is half that of car 1, then the time in minutes taken by car 1 reaching P from A. Okay, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या इंफॉर्मेशन दी है। स्पीड ऑफ कार 2 इज हाफ ऑफ 1, यानी अगर 1 की स्पीड x है तो 2 की स्पीड हाफ है, यानी अगर कार 2 की स्पीड अगर मान लेते हैं s, तो इसकी स्पीड कितनी है? 2s। अब कंडीशन क्या है? साइमल्टेनियसली शुरू किया था क्या? टू साइमल्टेनियसली, यस। इसका मतलब ये हो गया कि जितने टाइम में कोई कार ए से पी आएगी उतने ही टाइम में कार 2 बी से पी आ रही है। तो वी सिंपली कंपेयर द टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एपी डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो कार 1 का जो टाइम होगा वो आएगा x/2s, और वो वैल्यू जो है, अच्छा इक्वल नहीं दिया है, 1 दिया हुआ है, सॉरी गैप दिया हुआ है ना। कार 2 रीचेस 1 आवर आफ्टर, सॉरी कार 2 रीचेस 1 आवर आफ्टर, 1 घंटे बाद, यानी कार 1 के टाइम में अगर 1 घंटा जोड़ दिया जाए तो ये जो टाइम है वो कार 2 के बराबर है। तो कार 2 को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस 3x अपॉन स्पीड कितनी है उसकी? s, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाता है 2x अपॉन, सॉरी इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपको मिल जाता है 1 = 3x अपॉन s, और वी कैन से 6s
x अपॉन 2s माइनस x अपॉन 2s, यानी 1 आ जाता है आपका। एलसीएम हो गया 2x यानी 5x अपॉन 2s। निकालना क्या था? निकालना था कि देन द टाइम इन मिनट सेकंड बाय कार वन को कितना देर लगता है, यानी आपको x अपॉन 2s निकालना है, x अपॉन 2s निकालना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारा आर्स में आ रहा है, तो x अपॉन 2s की वैल्यू कितनी आ रही है? इस हिसाब से x अपॉन 2s की वैल्यू आ रही है 1/5। व्हाट इज 1/5? 1/5 ऑफ द आर का मतलब हो गया 12 मिनट, तो आंसर कितना होगा? 12 मिनट्स। तो क्वेश्चन अगेन टाइप है टीटा टाइप, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 मिनट्स। आपको अल्टीमेटली बस x/2s निकालना था। x/2x, s की वैल्यू कितनी आएगी? 12 मिनट्स। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Next is let ABCD be a rectangle inscribed in a circle of radius 13 centimeter. तो एक सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 13. What is the one of the which one of the following pair can represent in centimeter the possible length of breadth of ABCD? ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ABCD। ठीक है, तो एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, इंस्क्राइब करा हुआ है इसमें आपने, रेडियस की लेंथ दी हुई है आपको 13। रेडियस अगर 13 है तो कितना हुआ डायमीटर? 26। 26 90। लेंथ ब्रेड्थ की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मान लेते हैं ये x है और ये y है, तो पाइथागोरस फुलफिल होनी चाहिए। पर ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया, ये तो मतलब मैथ लेवल क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखिए, अगर हाइपोटेनस 26 पता है तो आप पाइथागोरस का ट्रिपलेट चेक कर लो ना बस। तो 26 मतलब इसके फैक्टर क्या करेंगे? 13 होता है, तो 13 के साथ कौन सा याद है आपको? 5 12 13 याद है? अगर 5 12 13 ट्रिपलेट है तो एक और पॉसिबिलिटी लेंथ की हो सकती है 10 सेंटीमीटर, 10 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो अगर 26 वाली हाइपोटेनस है तो लेंथ ब्रेड्थ क्या हो सकती है? 10 24। ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, करना ही नहीं इसमें तो आपको, राइट? ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर n है, while the पास मार्क्स इज 45% ऑफ n। ठीक है, सो पासिंग मार्क्स आपके हो गए 45% ऑफ n, यानी कि 0.45 n आपका पासिंग हो गया। मैक्सिमम मार्क्स n आ सकते थे। अ कैंडिडेट ऑब्टेन 36 मार्क्स बट फेल फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पास मार्क बाय 68%। 68% मार्क्स कम पड़ गए, बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 60, यानी पासिंग का 68% कम पड़ गया। उसके मार्क्स कितने हैं? 36। कितने कम पड़ गए? 68% ऑफ पासिंग मार्क्स। तो 68% ऑफ पासिंग मार्क्स मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? अगर इतने आ जाते तो भाई साहब एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स के बराबर ही पहुंच जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेट मी करेक्ट इट, इट्स नॉट x, इट्स n। तो ऐसा कुछ है आपके पास, तो आपको क्या मिलता है? 36 इज इक्वल टू, नाउ इफ यू कंसिडर, जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे वहां से तो 0.545 n तो कॉमन निकल जाएगा, और 100 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब एक्चुअली ये समझो कि अगर मान लेते हैं ये p है और अगर ये भी p है, तो p में से 68% जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 32% बचेगा, सिंपल। 32% किसका? 32% ऑफ द वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं। तो 0.45 n का 32% निकालना है, तो कैन वी कैलकुलेट n हियर? वेरी इजीली। तो n की वैल्यू क्या आएगी? समझिए बहुत ध्यान से, मैं फिर समझाता हूँ कि पासिंग मार्क्स अगर p है तो वो 0.45% ऑफ n है, वो लिख दिया अपन ने। एक बच्चे को 36 आए, 36 मार्क्स लिख दिए, और उसके मार्क्स कम पड़ गए, कितना? 68% ऑफ पासिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 68% ऑफ पासिंग। ठीक है, तो 36 मार्क्स आए, 68% ऑफ पासिंग और ऐड करेंगे तब वो पास हो सकता है, बिकॉज वो मार्क्स कम पड़ गए ना। तो व्हेन यू सबट्रैक्टेड आपको मिल जाता है 36 इज इक्वल्स टू एक्चुअली 32% ऑफ दी पासिंग। ठीक है, सो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 36 इंटू 100 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 अपॉन 32। क्या करा मैंने ऊपर भेज दिया इसको। Now if you calculate, सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम इसको, 4 से किया तो 8 जा, 4 से किया तो 25। ठीक है, फिर 9 से किया तो 9 4 36, 9 से किया तो 5 जा, 9 5 45, 1 जा
एंड 2 जा 5, 2 जा 10 हो गया। तो आपको मिल गया कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 250। 250 नंबर का पूरा पेपर था। सवाल पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज देन करेक्ट। n, यस n इज 250। सो क्या n 200 से कम है? नो। क्या n 25 से ज्यादा है? नो। क्या n की वैल्यू 201 से 242 बीच में? नहीं, ये रहा ऑप्शन बी, राइट। अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Let x, y, z be three positive real numbers in geometric progression such that x is less than y, y is less than z. If 5x, 16y, and 12z are in AP arithmetic progression, then the common ratio of the GP is. All right. So the numbers are x, y, z. They are in geometric progression. So x, y, and z. ये पढ़ाया गया था कि जब 3 नंबर लेने हो तो एक a होगा, एक AR होगा, उसके पहले वाला A/R होगा। उससे क्या होता है, उससे होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बट अगर ये प्रोडक्ट वगैरह दिया होता है तब यूज आता है। तो अभी तो फिलहाल मैं AR और AR स्क्वायर ले सकता हूँ। सो फर्स्ट नंबर इज A, द अदर इज AR, द अदर इज AR स्क्वायर। एंड व्हेन यू से 5x, तो 5x क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5a। 16y क्या हो जाएगा? 16y हो जाएगा 16AR। और 12z क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12AR स्क्वायर। और ये नंबर AP में आएंगे। अगर ये में AP में है तो यूज डेफिनेशन ऑफ AP कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हर जगह से आर कट ए कट सकता है। हर जगह से अगर ए कट कर दिया तो आपको मिल जाता है ऐसा कुछ, राइट। यू कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट, अ प्रीटी इजी वन। तो आपको मिल जाता है, सब कुछ राइट भेजते हैं, 12R स्क्वायर माइनस 32R प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 60 आता है, प्लस करने पे 32 आता है? 30 एंड 2, तो आ जाएगा 12R स्क्वायर minus 30R minus R plus 5 is equal to 0. I can take 6 common, R common, I will get 2R, sorry 2R है ना, 2R minus 5, I take minus common तो आपको मिलेगा 2R minus 5 is equal to 0. So one factor is 2R minus 5, the other factor is 6R minus 1. So R की वैल्यू यहाँ तो 5/2 है और R की वैल्यू यहाँ 1/6 है। I got 2 answers, but x से बड़ा y है और y से बड़ा z है। इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी में जो मॉड ऑफ r होता है वो मोर देन 1 होता है। तो कहां पे मोर देन 1 दिख रहा है? 5/2। सो 1/6 मार्क नहीं करेंगे, हम 5/2 मार्क करेंगे, राइट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।